Good morning, everyone. Let us continue the chapter electricity. Children, till now I have told you what is current. I hope everybody is revising it daily. Children, if you remember, current has a symbol I. It is defined as rate of flow of charges. Right? We have done what is current. And I mathematically, if you remember, was Q by T, where I is current, Q is charge, and T is time. If you remember, I have told you that SI unit of current is ampere, SI unit of charge is coulomb, SI unit of time is second. So 1 ampere from here comes out to be 1 coulomb by 1 second. This much I have taught everyone. Now I start with children electric potential difference, or it is only called potential difference, right? It is one and the same thing, children. It is electric potential difference or potential difference. Everybody should take out their registers and start copying along with me, or I'll send whatever I have taught today. I'll send it in your groups also. You can copy from there. चलिए children, potential difference क्या है? Suppose children, I have kept a charge Q here at point A and I want to take it to point B. Of its own तो it will never go. आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. जैसे ये पेन यहाँ पड़ा है, आई वॉन्ट टू मूव इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो मुझे क्या करना पड़ा बच्चे? मुझे इस पेन को यहाँ से हाथ हिलाए मैंने अपने, मुझे इसे यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ा. दैट मीन्स आई हैव डन सम वर्क. सिमिलरली चिल्ड्रन, if I have to move a charge from one point to another, I have to do some work. That work done to move a charge from one point to another is called potential difference. So first of all, I write the definition. Work done to move a charge from one point to another is called potential difference, right? Is called potential difference. I repeat, work done to move a charge from one point to another is called potential difference. Its symbol is children V. Its SI unit is volts, which is also written as V, and mathematically children, we write V is equal to W by Q. That is, V is potential difference, W is work done, Q is charge. So mathematically we write V is equal to W by Q, where V is potential difference, children, W is work done, and Q is charge, right? And you all know children, I have told you SI unit of potential difference मैंने अभी आपको बताया volt. SI unit of work is joules, आपने 9th में भी पढ़ा होगा. and SI unit of charge is coulomb. So as per mathematics, as I wrote V is equal to W by Q, I can substitute all these units here and I can write it as 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb, right? So from here, if I am asked to define 1 volt, पहली बात तो आप ये भी याद रखेंगे बेटा, आपके 1 मार्क क्वेश्चन तो कई बार यही आता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज जूल्स पर कूलम. तो कौन है वो क्वांटिटी? वोल्ट. और वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस. अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिखूंगी. फिलहाल आप यहाँ से समझिए
define 1 volt. बच्चे, if 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then potential difference of these 2 points is 1 volt. I repeat, आप देख सकते हैं 1 volt है 1 joule by 1 coulomb. So what I am telling you, if 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then potential difference between those 2 points is 1 volt. So I repeat, define 1 volt is, if 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then potential difference between those 2 points is 1 volt. Right, children? This is very important. If 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, then potential difference between those 2 points is 1 volt. चलिए, अब मैं आपको छोटे क्वेश्चन और क्या बता रही थी बच्चे? देखो, जैसे मैंने आपको बताया पेपर में क्वेश्चन आ जाए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI unit is joules per coulomb. तो वो क्वांटिटी कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्ट नहीं लिख के आएंगे, वोल्ट तो यूनिट है, क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस. राइट चिल्ड्रन? चलिए, अब मैं आपको यहाँ एक और क्वेश्चन बताती हूँ कि आपके सर्किट में अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो, वोल्टेज वोल्ट को मेजर करना हो, तो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? दैट डिवाइस इज चिल्ड्रन वोल्ट मीटर. क्वेश्चन कई बार आता है, नेम द डिवाइस which is used to measure potential difference in the circuit. Then this answer is voltmeter. voltmeter वो डिवाइस है जो यूज करता है पोटेंशियल डिफरेंस नापने के. राइट? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कई बार बच्चे, नेम द डिवाइस विच मेंटेन प्रोवाइड, जो देता है सर्किट को, विच मेंटेन और प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट. जो एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करता है, मेंटेन करता है, उस डिवाइस को कहते हैं बच्चे सेल या बैटरी. अगर आपने कभी सेल या बैटरी देखी हो तो आपने देखे हैं उसके एक तरफ ऐसा प्लस लिखा होता है, एक तरफ ऐसा माइनस का निशान बना होता है. ये हमारे सर्किट में क्या प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस. राइट? नाउ एवरीवन ओपन द बुक एट पेज 201. Open the book at page 201. You will find the topic electric potential and potential difference. चलिए, I'll read for you. ये जितनी भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इसमें लिखा हुआ है. Let's see with me. What makes the charge to flow? Let us consider analogy of flow of water. Charges do not flow in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube will not flow. क्या कह रहा है आपको पता है? अगर एक ट्यूब है तो एक एंड ऊपर कर दो, एक नीचे कर दो, तो वाटर फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल. ऐसे ही अब चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट हायर लेवल सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, वाटर विल फ्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्यूब. फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर, gravity has no role. Electrons move only if there is a electric pressure which is called potential difference. याद रखेंगे, चार्ज हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल
to low potential. This difference of potential may be produced by battery or cells. The chemical action within a cell generates potential difference. मैं भी आपको बता रही थी कौन प्रोवाइड करता है, कौन मेंटेन करता है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो कौन है? सेल और बैटरी. When the cell is connected to conducting circuit element, potential difference sets the charges in motion and that produces current. So we define potential difference between 2 points in a circuit carrying current as work done to move a unit charge from one point to another. तो कितना काम करना पड़ता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. चेक कीजिए आप भी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा हुआ है वर्क अपॉन चार्ज, अंडरलाइन कर लीजिए. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, अंडरलाइन कीजिए. इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, एन इटालियन फिजिसिस्ट. फिर देखो यहाँ से 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ये सब अंडरलाइन करो बेटा. मैथमेटिकली V इज W/Q, SI यूनिट इज वोल्ट एंड 1 वोल्ट. आइए जरा मेरे पास, 1 volt is same. देखो, when 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, that is called 1 volt. ये definition मैंने आपको लिखा दी. आगे चलिए देखो, same potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. और voltmeter हमेशा parallel में लगता है, ये कहानी मैं आपको समझाऊंगी. चलिए अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा रही हूँ और ये तीनों क्वेश्चन करवा रही हूँ ब्लू बॉक्स के, जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. चलिए आइए मेरे साथ, सबसे पहले ये एग्जाम्पल 12.2 देखिए. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. तो चार्ज है बेटा 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट. आपने निकालना है वर्क डन. चलिए आइए, दिस इज एग्जाम्पल 12.2 NCERT. अगर आप ध्यान देते हैं बच्चे, तो चार्ज कितना दे रखा था? 2 कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट. अब आपको पता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/Q. तो W क्या हो गया? Q इंटू V. चार्ज है 2, V है 12, तो वर्क डन आ गया 24 जूल्स. राइट. एक क्वेश्चन और कराती हूँ अपनी तरफ से, देखो जरा ध्यान से. इफ 220 वोल्ट is applied in a circuit and 2 coulomb charge flows, how much work will be done? सब बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन रीड कीजिए. If 220 volt is applied in a circuit and 2 coulomb charge flows, how much work is done? तो बेटा जी इसमें पोटेंशियल कितना दे रखा है? 220 वोल्ट. चार्ज कितना दे रखा है? 2 कूलम. और क्या निकालना है आपने? वर्क डन. V क्या था फॉर्मूला? W/Q. V है 220, W आपने निकालना है, चार्ज है 2, तो यहाँ से W आ गया 220 इंटू 2, दैट इज 440 जूल्स. जब ये YouTube वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं Zoom लिंक भेजूंगी और वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इससे रिलेटेड सेम, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकें. ठीक है. चलिए नाउ आई कम टू ब्लू बॉक्स. पहला क्वेश्चन है, सुन लीजिए, ओरल और कॉपी में लिख के मेरे को ग्रुप पे भेजेंगे अभी. नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर. मैंने अभी आपको बताया मेंटेन कौन करता है? सेल और बैटरी. व्हाट इज मेंट बाय 1 वोल्ट? इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ. थर्ड है हाउ मच एनर्जी. एनर्जी और वर्क एक ही बात है. ईच कूलम. ईच कूलम का मतलब है चार्ज 1 कूलम है पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी. ये इस पेज के तीनों क्वेश्चन करने हैं. देखो बेटा, ब्लू बॉक्स पेज 202 NCERT. सब बच्चे कॉपी में करके मेरे को इसे अपने स्टडी ग्रुप में भेजेंगे. पहला है कौन सा डिवाइस मेंटेन करता है? तो कौन मेंटेन करता है? सेल और बैटरी.
दूसरे क्वेश्चन में बेटा जी आपने पूछा है, उसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखनी है। मेरे नोट्स में मैंने अभी लिखवाई थी, लिख लेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में बच्चे चार्ज है 1 कूलम और पोटेंशियल दे रखा है 6 वोल्ट। आपने निकालना है वर्क डन। फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल 6 है, वर्क आपको निकालना है, चार्ज 1 है, तो वर्क डन आ गया 6 जूल। वर्क या एनर्जी एक ही बात है, तो एनर्जी भी कितनी आ गई? 6 जूल्स, राइट। यहाँ तक आप कंप्लीट करके मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, देन आई विल कंटिन्यू मोर। इसके अलावा आई एम श्योर मैंने आपको ये वाला सिंबल का टेबल बनवा दिया है। अगर आपने बना लिया है तो ग्रुप पे लिख दीजिए यस मैम ऑलरेडी मेड, और अगर नहीं बनाया है तो ये पूरा टेबल कॉपी कर लीजिए। सेल क्या है, बैटरी क्या है, इनके सिंबल आपको पता होने चाहिए। सेल आपको प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या होती है? सेल्स इन सीरीज। स्विच ओपन क्या है? जहाँ से करंट नहीं जाता है। स्विच क्लोज विच अलाउ द करंट टू पास। ये वायर जॉइंट का, वायर क्रॉसिंग का सिंबल देखिए, दिस इज सिंबल ऑफ बल्ब। ये रेजिस्टेंस है, आपको हम बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे आगे वाले टॉपिक में आएगा। ये सारे सिंबल कॉपी में बना के आप मेरे को स्टडी ग्रुप पे बताएंगे कहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, देन आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम इट, राइट। चलिए, here I end this video. Once you see it, send me a thumb on study group that you have seen it. Whatever I have written in the pages, I am sending that also in the study group. चलिए, see you there in the study group, children.